And named as best tourist country in the world by Norway's Travel News magazine, fifth year in a row. Europe, US, Denmark have rated Thailand as the best vacation spot on the planet. Thailand means relaxing in a cool climate along the beach side. Thailand was known as Siam until 1939. Visiting Thailand is an exciting mixture of unique culture experience, undreamed visual images and exotic tropical recreation. Wonderful friendliness, that's Thailand. Thailand, the land of smiles. A genuine smile is a staple of Thai life. You will start greeting others in a Thai way with a smile after you have spent few days in Thai. One visit to Thai and you want to come back again and again, or even you want to reside in Thai permanently. Thailand is a part of 21st century geo-economic region, the Pacific Rim. Thailand's population is more than 60 million. Thailand is located on the narrow Malay Peninsula with the Andaman Sea, Indian Ocean on its west side and Gulf of Thailand Pacific Ocean on its east. थाईलैंड मतलब मौज मस्ती और आराम. Laos, Myanmar, that's Burma, and Cambodia are Thailand's neighbor on the Indo-China Peninsula. Malaysia and Singapore are 5,14,000 square kilometer. That's the size of France or Spain. On June 24, 1939, the government of Siam, the only free nation in Southeast Asia, changes its name to Thailand, which means free land. 14% of Thai economy is based on its tourism. Even the most cost-sensitive traveler can afford first-class services, luxury amenities in Thailand. Travelers find Thailand relatively easy and economical. Thai people are most friendly and easygoing. The best time to visit Thailand is between November and Feb because during these months it rains the least and is not too hot. This is also a main season for both national and international festivals in Thailand. As already mentioned earlier, in 1939 the country's English name was officially changed from Siam to Thailand. In 1945, the country's English name was officially changed from Thailand to Siam but kept Pratit Thai as the official Thai name. ये रेत का बिस्तर बना के सोया हुआ है हमारा एक बैंकॉक थाई का यहाँ का सिटीजन. इट्स स्लीपिंग इन द सैंड. इट्स ओवरकोट ऑफ सैंड. चादर भी सैंड की, रेत की, और बिस्तरा भी रेत का. हाय, हाउ आर यू? ओह, वेरी ब्यूटीफुल. Since when you are sleeping here? Since when? Since days and ages? How many years you have been sleeping here? Hello? Can you hear me? You are alive? Boat driver, if anything happens to me, he is responsible for it. मेरी जान अब इसके हाथ में है, ये मुझे ले जाएगा यहाँ पे. भैया, what you call this? Language problem. भैया मुझे कुछ हो जाए तो ये बंदेला है. भैया ये स्टार्ट तो कर रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है, सच बताऊँ, थोड़ा सा. कैमरामैन तो बड़े मजे लूट रहा है, मैं डर रहा हूँ. कैमरामैन बड़ा हंस रहा है बैठ के.
बचपन में स्विमिंग सीखी थी मैंने, बचपन में स्विमिंग सीखी थी। देखो हो सकता है काम आ जाए अभी। रेस, हेलो। थाई लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। थाईलैंड में आपको इतना अपनापन और प्यार मिलेगा कि आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे या फिर हमेशा यहीं बस जाना पसंद करेंगे। एक अजीब किस्म का आकर्षण, मैग्नेटिक पावर है यहाँ पर जो आपको बार बार यहाँ खींच लाएगा। दैट्स थाईलैंड। गौतम बुद्धा को मानने वाले थाई लोग बहुत ही मॉडेस्ट और मिलनसार होते हैं। ज़्यादातर लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। जैसे हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, वैसे ही थाई लोग हाथ जोड़कर ग्रीट करते हैं, जिसे कहते हैं सवादी। Office, hotels and restaurants. Temples contain bronze images of Brahma or Shiva. Day and night you will see Thais kneeling before such shrines with lots of respect and regards, offering their prayers to these Indian gods. गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानने वाले थाई लोग हाथ जोड़े, चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए हुए हमेशा टूरिस्ट के स्वागत में पाए जाते हैं। नमस्ते मतलब सवसदी से बहुत सारे बीचेस। मुंबई से बैंकॉक के लिए हवाई जहाज का सफर तकरीबन 4 घंटे का है। स्वर्णभूमि मतलब लैंड ऑफ गोल्ड। Thailand's international airport, located at 25 kilometers east of Bangkok. Swarnabhumi Airport
नॉर्वे की ट्रैवल न्यूज मैगजीन ने थाईलैंड को लगातार 5वीं बार दुनिया की बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट माना है। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल सा लगता है। आधा दिन तो आपको एयरपोर्ट घूमने में ही निकल जाएगा। डिपार्चर के 3-4 घंटे पहले ही अगर आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं तो आप अंदर से एयरपोर्ट की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। इट्स रियली ह्यूज एंड रियली ब्यूटीफुल। ध्यान रखिए, वैट रिफंड फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको 1 घंटे का समय लग सकता है। So it's better to be in time if you have purchased anything above 5,000 from Thailand for VAT refund. स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। Thailand's literacy rate is 92.6%, which is one of the highest in Southeast Asia. It takes nearly 35 minutes from central Bangkok to airport. Taxi charges are approximately 300 to 400 baht from airport to central Bangkok. थाईलैंड के 3 मेजर सिटीज हैं: बैंकॉक, अयुथया और सुखोथाई। थाईलैंड की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज काफी इम्प्रूव है। एसी बसेस, एसी टैक्सीज, तुक तुक यानी छोटी ऑटो रिक्शाज, मोटरसाइकिल टैक्सीज, फेरीज एंड स्काई ट्रेन्स। Thailand has the latest 21st century infrastructure and it has a total area of about 5,14,000 square kilometers. At 92.6%, Thailand's literacy rate is one of the highest in Southeast Asia.
Free public schooling is compulsory for initial 9 years. Thailand is a well-cultured country. Talking loudly is perceived as rude by cultured Thais. ज़ोर से या चिल्ला के बात करना थाई कल्चर में असभ्य माना जाता है। अगर आप थाईलैंड में हैं तो आपको काफ़ी डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। Bangkok's home for teenagers. On any given weekend, half the city can be found here. Most economical place to buy anything. Bangkok may be crowded, but its departmental stores, shopping malls are comfortable and cozy. दोस्तों, बैंकॉक में भी आपको इंडियन फूड की कभी कमी महसूस नहीं होगी। ऐसे लग रहा है जैसे मैं इंडिया में ही कहीं मुंबई में या चंडीगढ़ में बैठा हुआ हूँ। हमारे सरदार भाई काफ़ी हैं यहाँ बैंकॉक में, ख़ास तौर पे ये प्रथुनाम एरिया में। कुछ सरदार जी आए हैं इंडिया से। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर सा गुरुद्वारा है। चलेंगे हम भी गुरुद्वारे में मत्था टेकने। आप कितने सालों से यहाँ थाईलैंड में रह रहे हैं? मैं 4 साल लास्ट 4 साल, अभी 1 साल पहले इंडिया चला गया था। अभी संधू जगजीत सिंह जी के साथ मैं आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो तो आपने देख ही ली है। हाँ, मेहमान नवाजी का तो खैर कोई यहाँ का जवाब ही नहीं है। जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ बड़े प्यार से लोग बड़ी इज्जत से मिल रहे हैं, हाथ जोड़ के ऐसे बात करते हैं। तो इनका जो है किसी को जी के बिना नहीं बोलते, बढ़िया ईमानदार हैं लोग, अच्छे हैं लोग, मिलने के लिए सबको प्यार से मिलते हैं। तो वैसे भी कल्चर तो हमारा इंडियन ही है इनके पास भी। हाँ, ये आपने जो कहा कि ईमानदार है, ईमानदारी तो यहाँ पे खैर गज़ब की है। मैंने देखा बहुत सारे दुकानों में यहाँ पे शटर नहीं है, सिर्फ बाहर जो कांच के ग्लास लगे हुए हैं। इवन शटर मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और इस वक्त हम यहाँ प्रथुनाम एरिया में बैठे हैं। इट्स अ कमर्शियल एरिया है, पूरा बिजनेस वगैरह यहाँ से बहुत होता है, होलसेल मार्केट्स हैं यहाँ पे। और खाने का तो खैर जवाब ही नहीं है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया से बाहर आए हुए हैं। थाईलैंड में थाई फूड का भी मज़ा लीजिए और यहाँ पे आप इंडियन फूड का मज़ा लीजिए। तो ये जो रेस्टोरेंट है हमारे भाई साहब का है। अच्छा। तो यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन इस एरिया में यही एक है। अच्छा। और सबसे अच्छा है सफाई का। इंडियन टेस्ट आपको यहीं पे मिलेगा कहीं पे। हाँ, वो तो मैंने अभी खाना खा लिया तो इंडियन टेस्ट तो खैर ऐसे लग रहा है जैसे आप कहते हैं ना कि होम अवे फ्रॉम होम, वही वाली बात हो गई यहाँ पे भी। तो बाकी बहुत अच्छा है। आपने देखा घूम के और भी कहीं देखा होगा, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लगता नहीं है कि हम हिंदुस्तान के बाहर घूम रहे हैं। तो अपना एरिया है, अपने लोग हैं, तो सब बढ़िया, एकदम से अच्छा लग रहा है। ओके, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब हम लोग चलेंगे होलसेल मार्केट में। लेट अस एक्सप्लोर द मार्केट। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी।
अभी हम लोग खड़े हैं प्रथुनाम सेंटर, दिस इज़ कॉल्ड प्रथुनाम एरिया। इट्स अ फुली कमर्शियलाइज्ड एरिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आप देखेंगे आसपास में काफ़ी इंडियंस नज़र आएंगे आपको, मोस्टली चंडीगढ़ पंजाब से, एंड इवन फॉरेनर्स जो हैं आपको साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया से आपको नज़र आएंगे, बिकॉज दे डू बिजनेस ओवर है। यहाँ से होलसेल मार्केट है गारमेंट्स के, लेदर गुड्स के, तो यहाँ से काफ़ी परचेसिंग होती है। काफ़ी इंडियंस हैं यहाँ पे। और नीचे चलेंगे हम बेसमेंट में, यहाँ पे होलसेल मार्केट्स हैं। गारमेंट्स तो बहुत ही चीप हैं, वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी इकोनॉमिकल। लेदर गुड्स, लेडीज़ पर्सेस, कॉस्मेटिक्स सब मिलेगा आपको यहाँ पे। दिस इज़ प्रथुनाम एरिया। काफ़ी इंडियंस हैं यहाँ पे और इंडियंस रहते भी हैं यहाँ पे। आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे सरदार जी यहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज दे बिलोंग टू थाईलैंड इटसेल्फ। काफ़ी सालों से वो यहाँ थाईलैंड में ही रह रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं इस वक्त अ जेंटलमैन फ्रॉम विशाखापट्टनम, इंडिया। वी वुड लाइक टू आस्क हिम अबाउट द थाईलैंड एंड द पीपल इन थाईलैंड। हाउ डू यू फाइंड थाईलैंड? Very nice place. It is a very nice place. People are well disciplined and well cultured, and they are following the rules adopted by the government. That I liked it. I think hospitality is good. People are very kind and very helpful. Very helpful. Very helpful. And they are very polite in treating the customers. Wherever Very you go, polite. Yeah. wherever you go, they will treat very polite towards their customers. Okay. Thanks a lot. Nice meeting you, sir. थाईलैंड में रहना, खाना पीना, घूमना काफ़ी सस्ता है। 600 से 700 रुपए में आपको किसी भी अच्छे से होटल में एक एसी डबल बेडरूम आसानी से मिल जाएगा, वो भी समुंदर के किनारे। फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग हैं बायोक स्काई टावर नंबर 2। द बिल्डिंग इज़ 84 स्टोरी। यहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे तो पूरी बैंकॉक आपको नज़र आएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं अपने कैमरामैन गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़े टाइम के बाद पैन करें, सो दैट यू कैन ऑल्सो सी द व्यू। काफ़ी ब्यूटीफुल है। आई डोंट फाइंड वर्ड्स टू डिस्क्राइब एक्चुअली। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। पूरा बैंकॉक आपको नज़र आएगा यहाँ से। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन बैंकॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से व्यू जो नज़र आता है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर व्यू है। जो गाड़ियाँ हैं, जो लोग हैं, इतनी छोटे छोटे से दिखाई पड़ते हैं। जगमगाता हुआ बैंकॉक। इस वक्त बैंकॉक में 6:45 हुआ है। अभी तक पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन नीचे से आप देखेंगे तो पूरी लाइट्स वगैरह जल रही हैं। देयर आर एक्चुअली 2 Bayok 1 and Bayok 2. Bayok 1 is 43 or 44 story and this is 84 story. Mind blowing.
The palace buildings is the Chakri Mahaprasad, the Grand Palace Hall built in 1882 by British architects using Thai labor. The exterior shows a peculiar blend of Italian Renaissance and traditional Thai architecture. The buildings of the Grand Palace are now put to use by the king only for certain ceremonial occasions such as Coronation Day. King's current residence is Chitlada Palace in the northern part of the city. Wat Phra Cave and Grand Palace, also known as the Temple of the Emerald Buddha. Temple complex adjoins the former residence of the monarch, the Grand Palace. ह्यूज ब्यूटीफुल टेम्पल्स और हिस्टोरिकल साइट्स आपको पूरे थाईलैंड में नजर आएंगे। The Grand Palace complex was established in the year 1782 and it houses not only the royal residence and throne halls but also a number of government offices as well as the renowned temple of the Emerald Buddha. Grand Palace covers an area of 218,000 square meters. Prior to this, the royal palace and center of its administration had been located in Thonburi on the west side of the Chao Phraya River. But after ascension of King Rama I in 1782, this new palace was built. This ground was consecrated in 1782, the first year of Bangkok rule. 94.5 hectare ground the first year of Bangkok rule. 94.5 hectare ground encompass more than 100 buildings that represent 200 years of royal history and architectural experimentation. Emerald Buddha is the temple's primary attraction.